guys, how are you? Hello guys, myself is Parveen Khanna and today I am going to give you some tips to enhance your IELTS readings. कुछ मैं आपके साथ जो टिप्स हैं उनके रिलेटेड बात करूंगा कि क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जिस वजह से कि स्टूडेंट्स स्कोर नहीं करते. ठीक है, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग सम टेक्निक्स. मैं कुछ IELTS रीडिंग्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं कुछ आपको बेसिक बातें आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ. And I'm going to discuss some basic things with you. So first of all, let me introduce myself, who I am. So myself, Parveen Khanna, and I have been coaching IELTS since 2006, and over the period of time, I have coached so many students, and ranging from plus 2 students to PhD, right? And I have been trained by IDP, and I have been awarded, and then further there are many students who have done beautifully well, so who have scored very good band score, and I have also worked to fulfill requirement of so many students. So further, after going through so many problems, what I actually keep doing is कि I keep noticing what type of things students are facing in their class. क्या उनको जो चीज है जो कि उनको मिलती नहीं है जिससे कि उनकी improvement रुक जाती है. Then further here I have made some key points to help you guys कि आप अपनी problems को sort out कर सकें. अब जैसे कि सबसे पहले हम readings के अंदर आज शुरुआत करने जा रहे हैं. And I am going to give you some points why students fail in IELTS readings. So I will be discussing some 6 specific points with you guys कि आप अपनी readings को जिससे कि improve कर सकें. Right? So let us not waste time and let us start. तो अब tips to excel at IELTS reading. अब now first of all जो सबसे पहला टिप है, जो सबसे पहला टिप ये है कि all 40 questions are not for you. Keep this thing in your mind कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, so आपने 40 से 40 क्वेश्चंस के लिए नहीं जाना. I understand most of you are preparing to score 6 bands. ठीक है, तो आपको 6 bands 23 स्कोर करके out of 40 मिल जाता है. And I would not say that you are to score only 23. You are not to target 23. You should target 25, 26 for that. But keep one thing in your mind when you are trying questions. So it often happens that IELTS reading जो set होती है, it has one section which is of tough level. There is one section which is of intermediate level, and there is also one section which is of easy level. तो आपने करना क्या है? You don't know which section is easier for you, intermediate or tough one for you. So while reading, if you find there is any question जो कि बहुत tough है, you have tried once, twice,
okay thrice, but still you are not able to understand or find answer to that question, it's better you to skip. आप उसको skip कर दें, ठीक है. Your every question has, your every section will be having 2 to 3 tough questions, and there you need to manage time. आपने टाइम को मैनेज करना है. आप अगर टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो सब कुछ ये क्या है, अपसेट हो जाएगा, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट all 40 questions are not for you and you are to manage your time evenly. आगे बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी आपको दूंगा जिससे कि आप कितना टाइम एक सेक्शन पर डिवोट कर सकते हैं, वो हम सारी बातें करेंगे. ओके, फर्दर इज टिप 2. इन टिप 2 व्हाट यू आर टू डू इज, आपने रीडिंग करनी है. देखिए, ऑफ कोर्स रीडिंग के लिए रीडिंग तो करनी है, बट विद रीडिंग व्हाट डू आई मीन, मेरा कहने का मतलब है कि आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपने मैगजीन्स पढ़नी है, आपने रीडिंग पैसेजेस पढ़ने हैं. वेरी ऑफन इट हैपेंस कि स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं, बट व्हाट हैपेंस कि बस दे ओनली ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स, दैट्स इट. Look, this is not enough. Students, you will have to understand that what actually is the meaning of passage. Very often ये भी मेरे को देखने को मिलता है, students are doing heading matching exercise, कहते हैं कि सर इतना कुछ हमारे दिमाग में बैठता नहीं है. हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, हेडिंग मैच करते हैं, अगले पैराग्राफ पे आते हैं, हेडिंग जब मैच करते वक्त या उसको पढ़ते वक्त पहला पैराग्राफ दिमाग से साफ हो जाता है. दैट शोज कि आपको रीडिंग्स करने की जरूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बेसिकली आपका टेक्स्ट किस बारे में है, ठीक है, उसके अंदर मेन फीचर्स क्या हैं. तो यहाँ पर मैं एक और बात कहूंगा कि मींस आप रीडिंग करेंगे तो आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे, ठीक है. यू पीपल आर इफ आर रीडिंग पंजाबी और इफ आर रीडिंग Hindi or any other language whatsoever. So if you are understanding that thing in first language, which is your first language, in first try, you are understanding all these things. So you should also be able to understand English in first, okay, not in first, but at least in second try, that what is written, what is this text about. तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, then there will be a problem for you. You will not be able to manage time, and obviously it would happen over the course of 1 hour. एक घंटे के टाइम में maximum you will be able to do questions which are of 2 sections. ठीक है, so it will be very very big problem for you, right? आगे चलते हैं. Tip number 3. Tip number 3 is reading is game of mindset. I always say कि रीडिंग एक माइंडसेट की गेम है, और यहाँ पर इंग्लिश के स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रेजेंस ऑफ माइंड से चलते हैं. और ऑब्वियसली है, देखिए नर्वस तो आप होंगे. इफ आई विल बी आल्सो टेकिंग टेस्ट, आई विल आल्सो गेट नर्वस. सो व्हाट शुड आई डू, मुझे अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, मुझे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है, और साथ के साथ क्या करना है, अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है. एंड other thing is, while understanding questions, you are also to understand or predict your answer. Very often it happens कि आप common sense use करते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाता है कि grammatically you are going to find noun, adjective, verb, adverb. और इसके अलावा कभी कभार हमको ये भी पता लग जाता है कि हाँ जी, कि किसी प्लेस का नाम उसने पूछा है, या उसने किसी वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहा है, दैट मींस वी नीड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. सो दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू नीड टू लर्न. आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, दैट वे आप अपने आंसर पे पकड़ बना सकेंगे. एंड बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं बिल्कुल क्वेश्चन तक पहुंच जाता हूँ, वर्ड तक पहुंच जाता हूँ, बट ओवर देयर आई चूज और आई पिक अ रॉन्ग वर्ड एंड आई मेक माई क्वेश्चन रॉन्ग, आई मेक माई आंसर रॉन्ग. देखिए, इसके लिए मैं यही बात कहूंगा कि यू नीड प्रैक्टिस, you need to understand कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है. वो who की बात कर रहा है, वो where की बात कर रहा है, वो why की बात कर रहा है, वो which की बात कर रहा है, वो what की बात कर रहा है, वो किसी place की बात कर रहा है, वो किसी noun की बात कर रहा है, वो किसी verb की बात कर रहा है. You have to understand these basic things, right? तो आगे चलते हैं. तो माइंडसेट की गेम है, और सिंपल सी बात है, इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू वर्क विद प्लान बी, प्लान सी. यू नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. मींस टू से आप एक पैसेज को लेट्स से ट्राई कर रहे हैं, एंड व्हाइल रीडिंग दैट पैसेज व्हाट हैपेंस कि स्टार्टिंग में उसने आपको ट्रू फॉल्स दिया है,
उसके बाद उसने आपको हेडिंग मैचिंग दिया है और एंड में उसने आपको फिलअप दिया। स्टूडेंट्स, प्लान ए तो सिंपल आपका है कि आप थिंग्स को सीरियली कर लें। आप सबसे पहले ट्रू फॉल्स करें, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन मैचिंग करें, एंड में आप समरी कर लें। बट आई वुड से ए नहीं वर्क कर रहा, ट्रू फॉल्स करने में आपको टाइम लगता है। व्हाई डोंट यू गाइस स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज इजी फॉर यू? नहीं, मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं अपने एक वीडियो के अंदर, 5 की टेक्निक्स इन रीडिंग। यू कैन सर्च ऑन माय चैनल, आप अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी फॉलो कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने वहां पर आपके लिए वीडियोस को चूज करना सिंपल किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है सभी वीडियोस को, कि रीडिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर जाके भी आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं कि मींस व्हाट इज द बेसिक थिंग। स्टूडेंट्स व्हाइल अप्रोचिंग देयर पैसेज दे डोंट गिव अ प्रॉपर स्टार्ट, वो सही तरीके से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है? फिर माइंडसेट भी सही नहीं होता। वेरी ऑफन इट हैपेंस। आई वुड लाइक टू टेल वन इंसिडेंट व्हाट हैपेंड वंस, कि एक स्टूडेंट, वंस आई वाज गोइंग टू conduct a mock test, or he came to have his class and he was not having pencil eraser and he demanded it from me. mock test के दिन वो शख्स बिना पेंसिल इरेजर के आ रहा है, बट आई एम श्योर यही शख्स अगर, यही स्टूडेंट अगर, students take their mooks lightly. again प्रॉब्लम कहाँ है? माइंडसेट की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो माइंडसेट अगर प्रॉपर होगा तो ही रिजल्ट आएगा। But that, so you need to take your each and every class seriously and you need to be very very flexible. आप हर एक चीज की इंपॉर्टेंस को समझें। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट फोर मैं क्या कहूंगा कि हमेशा आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है। ओके, think upward, never be satisfied by scoring only 23 24 as majority of you are preparing for 6 bands, I know. So anything is, you know, nothing is predictable, कुछ भी एग्जाम में हो सकता है, एंड योर बेस्ट प्रिपरेशन इज कि आप अपनी बेस्ट ट्राई करें और बेस्ट से बेस्ट आप स्कोर करने की कोशिश करें व्हेन यू आर टेकिंग योर क्लासेस। कि अगर आप 23 यानी कि 6 बैंड्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपका टारगेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ओके, क्लासेस के अंदर अगर आपने 6.5 स्कोर करना शुरू कर दिया है वेदर जीटी और एकेडमिक, तो आप 7 के लिए जाएं। आपने 7 करना शुरू कर दिया, आप फिर 7.5 के लिए जाएं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से, क्रॉस योर लिमिट्स एवरी टाइम। आप लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे, आप वहीं स्टैग्नेट कर जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। नोबडी नोज दैट इन एग्जाम व्हाट वुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। आपको स्लाइड डिस्टर्बेंस की वजह से कंसंट्रेशन नहीं होगी, राइट? पैसेजेस तो चलो मन के ही चलते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी, मींस यू वुड बी नर्वस। आपको इसके अलावा कोप करना है, जो वहां पर क्राउड प्रेशर है, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ भी। सो जितना आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बेहतर अचीवमेंट कर सकते हैं क्लास में, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो यू हैव टू क्रॉस योर लिमिट्स, ओके? एंड इफ एज आई हैव सेड अर्लियर, आप घंटे में काम कर रहे हैं, उस घंटे को आप 55 मिनट्स में करना शुरू कर दें। आप एक काम को अगर 55 मिनट्स में कर रहे हैं, तो फिर आप उसको 50 मिनट्स में करना शुरू कर दें। एवरी टाइम यू हैव टू क्रॉस योर लिमिट्स, राइट? Okay, fine, and that is the strategy I would suggest कि use 17, 18, 19 technique, means to say आपने फर्स्ट सेक्शन को 17 मिनट्स में करना है, सेकंड सेक्शन को 18 मिनट्स में करना है, और थर्ड सेक्शन को 19 मिनट्स में करना है। As I have said, कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिकी मिलेंगे, all 40 questions are not for you. Learn to skip questions, आप टाइम बचाने की कोशिश करें ताकि बाद में जो बचा हुआ टाइम है आप उन क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा आ सकें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि once if you are not able to understand questions, afterwards when you come back you can understand. It often happens. Okay, the worst case scenario भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं भी कर पा रहे, इन दैट केस आप एटलीस्ट वहां पर तुक्का तो लगा सकते हैं, यू कैन मेक अ गेस, राइट? तो इस टेक्निक के ऊपर जितना ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं करें। while taking your classes, why don't you guys put your mobile on countdown timer, ठीक है? ओके, एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक आपके ऊपर प्रेशर रहेगा while taking your test कि इतना टाइम बच गया and you are to do it, ठीक है? This technique also works. Fine, अब नंबर 5 के ऊपर चलते हैं।
Now, every test is final exam, as I would say. आपको ये mentality लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि students don't take classes seriously और mocks को भी वो serious नहीं लेते. You will have to take it seriously. ठीक है? A student who is preparing for 6 bands, I would say, अगर वो बहुत अच्छे स्कूल से है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे स्कूल से, तो एक महीना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वो प्रॉपर अगर प्लानिंग करे अपने एग्जाम अपने ट्यूटर के साथ बैठ के कि मींस व्हाट शुड बी हिज स्कोर एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, उसको 4 हफ्ते मिल जाएंगे एक महीने के अंदर, सो ही कैन अचीव सो मच. फाइन. तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और डेली के टेस्ट को आपको एक फाइनल एग्जाम की तरह लेकर चलना पड़ेगा, अपने से कमिटमेंट रखनी पड़ेगी और अपने लिमिट्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा. Fine. So challenge yourself daily. That is what I have said. And last point is learn from your mistakes. It happens very often. कि student ने आज एक test किया, sir I have scored 23 out of it. So okay, and I want next test. ठीक है, next test आप करो, कोई problem नहीं है. But what about remaining 17 questions which you got wrong? उनका क्या? वो 17 गलत क्यों हुए? Student never bothers. ठीक है. सो यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आप अपने मिस्टेक्स से लर्न नहीं करेंगे, आप कहाँ पर अपने मार्क्स को लीक कर रहे हैं, राइट, कहाँ पर आपकी जो एफर्ट्स हैं वहां पर रिजल्ट नहीं दे रहे. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स आल्सो. ठीक है, आप अपने मिस्टेक्स से नहीं सीखेंगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव. वो 23 से स्कोर आपका 24, 25, 30 तक नहीं पहुंचेगा. एज आई हैव सेड, बार-बार करते रहो और रीडिंग्स को बार-बार करने से तो इंप्रूवमेंट नहीं होगी. You would have heard the story. एक वो लकड़हारा होता है और वो सिंपल अपनी कुल्हाड़ी को से अपनी एक्स से काम करता रहता है, बट he never sharpens it. और एक और जो वुड कटर होता है वो अपनी एक्स को भी शार्प करता है और साथ के साथ अपनी बॉडी को भी रेस्ट करता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे he manages to have more output than the previous one. राइट. तो आपने भी अपनी एक्स को डेली शार्पन करना है. यू हैव टू वर्क ऑन ग्रामर, यू हैव टू वर्क ऑन वोकेबुलरी. ठीक है, तो तभी ये एक्चुअली होता कि हम अपनी मिस्टेक्स नहीं कर देते, हम इन चीजों को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते. फाइन. सो डिस्कशन इज की टू सक्सेस एंड यू डेली आर टू डिस्कस विद योर एग्जामिनर. आपका एग्जामिनर आपसे ज्यादा जानता है, सॉरी आपका ट्यूटर आपसे ज्यादा जानता है. आप अपने ट्यूटर से अगर डिस्कशन नहीं कर रहे, राइट, सो डेली मींस आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं. ठीक है, उसको पता है क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही टेस्ट डेली कंडक्ट करता है. सो बेटर गेट इन टच आफ्टर डूइंग टेस्ट एंड हैव एटलीस्ट अ डिस्कशन ऑफ 10-15 मिनट्स, राइट, ज्यादा नहीं आप कर सकते. तो सो दैट्स ऑल. तो अब मैं कंक्लूजन के ऊपर आ गया हूं. नाउ कंक्लूजन इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आप अगर अपनी प्रैक्टिस को परफेक्टली नहीं कर रहे, सो यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर, यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव. Fine. So with these words, I am concluding this session here. And thanks for watching. If you have been with this long time, so okay, bye bye guys, and I will see you in next session. अगले session के बारे में मैं बताऊंगा. Actually, what happened? Reading was the mainly thing which was voted by the students, and that is the reason why today we have discussed reading only. Sorry, I did not tell you initially what happened. And the second highest vote which I received with this live session was for IELTS task 2 writings, which we will have next week. हम next week करेंगे. Be on my channel. I will tell you what time will be the live session. So bye bye guys and see you. Thanks for watching.